गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिजिक्स में काइनेमेटिक्स में मोशन इन प्लेन डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। जो मोशन इन प्लेन है उसमें जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ आई जे के कैप, मतलब वेक्टर के हिसाब से, तो वो ऐसे लिखा जाता है। आर वेक्टर इज रिटन एज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर. It has x component, y component and z component. So if you want to write about velocity vector, it is written like this: dr by dt. So this is written as dx by dt I cap, dy by dt j cap, dz by dt k cap. तो नेक्स्ट हम अगर इसको और डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, पहले तो r वेक्टर को ही डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, so we get velocity vector. Now if we differentiate with respect to t again, we get acceleration vector. This is dv by dt. This is equal to, ये dx by dt जो है इसका सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा, d square x by dt square I cap plus d square y by dt square j cap plus d square z by dt square. This is k cap. ठीक है, तो इस तरीके से हम x, y और z को डिफाइन करते हैं मोशन इन प्लेन के अंदर। इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। The coordinate of a moving particle are x is equal to at square, y is equal to bt square, where a and b are constants and t is time. And t is time. The velocity of particle at any moment is a plus b 2t under root a square minus b square, a square plus b square. ठीक है, तो ये ऑप्शंस थे। जैसे कि आपको यहाँ x कोऑर्डिनेट क्लियर है at स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट क्लियर है हमें, दिस इज bt स्क्वायर। तो वेलोसिटी पूछिए तो v एज ए x कंपोनेंट, इसको डिफरेंशिएट करके आ जाएगा, दिस इज 2at। आपको इसमें डिफरेंशिएशन क्लियर होनी चाहिए। vy इज dy by dt, दिस इज 2bt। therefore net velocity vector is written as vx square plus vy square. this is 2t square, तो बाहर आ जाएगा इसमें और अंदर आ जाएगा हमारे पास a square plus b square, सॉरी 2t बाहर आएगा, इसमें 2t तो बाहर आ जाता है और a square plus b square आ जाएगा, तो a पार्ट इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें आप जैसे अगर आपको मैग्नीट्यूड पता करना है r का, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन।
वो आ जाएगा x square plus y square plus z square. In the same way, if we want to find the magnitude of this, मतलब speed, तो वो ये अगर this thing is vx, this is vy, this is vz. तो अगर हमें ये पता करना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, magnitude of v is written as vx का स्क्वायर, vy का स्क्वायर, vz का स्क्वायर, और magnitude of acceleration is ax square plus ay square plus az square. This thing is written as ax, सबस्क्रिप्ट में x है, मतलब x component of a, this is y component of a, this is z component of, ये तरीका है. सर वो मैं vx इक्वल टू 280 स्क्वायर के ये बारे इस में तरीके बोल से रहा हम ये था. क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. क्वेश्चन नंबर 2. The coordinates of a moving particle at any time t are given by x is equal to alpha t cube and y is equal to beta t cube. Speed of particle at any time t is 3t alpha square plus beta square, 3t square alpha square plus beta square, t square alpha square plus beta square, और ये आ गया alpha square plus beta square. ठीक है. अब इसमें x की वैल्यू भी दी हुई है आपको अल्फा टी क्यूब, और y की भी दी हुई है बीटा टी क्यूब. तो vx is dx by dt, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अल्फा टी स्क्वायर. vy is dy by dt, this will come as 3 beta t square. So at any time if I want to find out the velocity, it is vx square plus vy square. So this is 3t square common, alpha square plus beta square. Please check, same pattern पे कर रहे हैं इसको सॉल्व. नेक्स्ट देखते हैं, x and y coordinates of particle at any time t are given by x is equal to 7t plus 4t square. हाँ जी. And y is equal to 5t, where x and y are in meters. And t in seconds. The acceleration of particle at
t is equal to 5 seconds. Eight, 20 and 40. ठीक है जी। तो आपको अभी इसको डिफरेंशिएट करते हुए आगे बढ़ना है। x दिया हुआ है हमें, दिस इज 7t प्लस 4t स्क्वायर, y दिया हुआ है 5t। तो vx is dx by dt, this is 7 plus 8t, और vy is equal to dy by dt, this is 5. ax is dvx by dt, this is 7 का डेरिवेटिव 0, 8t का 8, so ax comes out to be 8. ay is dy by dt, because v is constant which is 5, so dy by dt is 0. Therefore acceleration is ax only, which is 8 meter per second square along x axis. ठीक है जी, ये आंसर आया था। चेक कीजिए और कोई डाउट है तो बताइए इसमें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में फोर्थ में अब हम रिवर्स देखेंगे इसके अंदर कि वेलोसिटी अगर दी हुई है तो कैसे हम मूव करते हैं उसमें। पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद वेलोसिटी vx is equal to 8t minus 2 and vy is equal to 2, of course in SI units. So if it passes through point x is equal to 14 and y is equal to 4 at t is equal to 2 seconds, then equation of path is ठीक है। मतलब इसमें x और y की इक्वेशन अब हमें बतानी है क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं अब हम। तो हमें vx तो गिवन है, इट इज 8t minus 2, और ऐसे ही हमें vy गिवन है, इट इज 2. So vx is written as dx by dt, it is 8t minus 2, and this is written as dy by dt equal to 2. ठीक है, तो this is dx is equal to 8t minus 2 dt and dy is equal to 2 dt. इसको this is d, ठीक है, अब इंटीग्रेट करते हैं इसको। ये t dt minus 2 dt dy इक्वल टू 2 dt। ठीक है जी, अब ऐसे इसको इंटीग्रेट करेंगे जब हम, तो फाइनल आंसर dx का इंटीग्रेशन होता है x 8t dt, इसका होता है 8t स्क्वायर बाय 2, इसका होता है माइनस 2t, प्लस इसका कांस्टेंट आ गया c1, इसमें इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज y, इसका हो जाता है 2t, प्लस इसका कांस्टेंट आ गया c2, इसका कांस्टेंट आएगा c1, इसका कांस्टेंट आएगा c2।
अब हमें x और t में एक वैल्यू पता है कि जब x की वैल्यू 14 है और y की 4 है, t की वैल्यू 2 पे, at t is equal to 2, x is equal to 14 and y is equal to 4. तो एक कांस्टेंट निकालेंगे हम इनके स्पेसिफिकली. तो देयरफॉर इसको पुट करते हैं, 14 is equal to t की वैल्यू 2, 16 4 plus c1. यहाँ आएगा 4 is equal to t की वैल्यू 2, 4 plus c2. So we get here as 14 is equal to 12 c1. c1 की वैल्यू आ जाएगी 2, c2 की वैल्यू आ जाएगी 0. तो c1 और c2 की वैल्यूज आ गई. अब हम x और y फिर से लिख देते हैं. Therefore I can write x as 4t square minus 2t plus 2, and I can write y as 2t because c2 is 0. तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है, t is equal to y by 2. इसको इसमें पुट करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 4 y square by 4 minus 2 y by 2 plus 2. X is equal to y square minus y plus 2. This is the equation. Please check कैसे इसको सॉल्व किया हमने, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद. अगेन पार्टिकल में वेलोसिटी दी हुई है, जब भी वेलोसिटी दी हो और आपको वापस डिस्प्लेसमेंट पे जाना है, मतलब पोजीशन पे जाना है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है. जब आपको पोजीशन दियो और वेलोसिटी पे जाना है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है. वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है. एक्सेलरेशन दियो, वेलोसिटी पे आना है तो इंटीग्रेट. सो डू रिमेंबर द थिंग्स दैट डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी. एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे आना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाना है. So then we have to integrate with respect to t. Integrate with respect to t. ठीक है जी, ये तरीका है. आगे बढ़े हम इसमें. अब आइए देखते हैं इससे आगे. क्वेश्चन नंबर 5. The velocity in meter per second of a particle is given by 4i cap plus 5j cap. Then 5t j cap. Then magnitude of its acceleration. In meter per second square is वैसे बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, क्योंकि जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू ऐसे दी हुई है 4i कैप प्लस 5t j कैप. ये vx है, ये vy है. एक्सेलरेशन जब भी हम लिखते हैं इट इज dv वेक्टर बाय dt. इसका डेरिवेटिव लेंगे 0, 5t का डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आएगा j कैप. तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज 5 j कैप, और इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड इट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो आंसर इज 5. सिंपल. particle motion on a shape curve is governed by
x is equal to 2 sin t, y is equal to 3 cos t, z is equal to root 5 sin t. What is the magnitude of velocity of particle at any time t? This is 3 root 2 sin t, A part, B part is 3, C part is 3 root 2 cos t, and D part is 3 root 2. अभी एक पार्टिकल जो है उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, वेलोसिटी हमें बतानी है। एक्स है 2 sin t, वाई है 3 cos t, z है रूट 5 sin t। तो vx dx by dt equal to dx by dt. This is 2 cos t. Vy is dy by dt minus 3 sin t. Vz is dz by dt रूट 5 cos t। ठीक है जी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v मॉड vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है 4 cos स्क्वायर t प्लस 9 sin स्क्वायर t plus 5 cos square t. So this is written as 4 plus 5 9 cos square t plus 9 sin square t. This is root 9 sin square t cos square t 1 हो गया. This is 3 at any time. चेक कर लीजिए बेटा इसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। सेवंथ, फोर persons KLMN are initially at corners of a square of side of length d. If every person starts moving with the same speed, if every person starts moving with same speed such that k is always headed towards m, headed towards L, and L towards M, M towards N, and N towards K. Then 4 persons will meet
meet after d by v root 2 d by v root 2 d by 2v। ठीक है, अब ये कुछ इस टाइप से हमारे पास सॉल्यूशन इसका है। ये देखते हैं, देखिए के एल एम एन, ठीक है, के एल की तरफ, एल एन की तरफ, एम एन की तरफ, एन के की तरफ। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये एक नया आप देखेंगे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये अब फिर से इस तरह से बनता जाएगा, एक दूसरे की तरफ ये आते जाएंगे। फाइनली इनको यहाँ मीट करना है, इस तरह से ये बनता जाएगा। ये ऐसे बन जाएगा, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरफ शो करेगा, ये इस तरफ, ये इस तरफ से शो करेगा। एक दूसरे की तरफ जैसे ये आते जाएंगे। तो अब फिर से ये इस तरह से बनेगा। ट्रायंगल को ठीक है, फाइनली दे विल मीट एट दिस पॉइंट। तो इसको हमें फाइनली कैसे सॉल्व करना है वो हम देख लेते हैं। उसके लिए ट्रिक क्या है सॉल्व करने की, इसको ये है, कोई भी एक पॉइंट पिक कर लेते हैं एन, इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, फाइनली इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी जो थी वो इस डायरेक्शन में थी, ये एंगल हमें पता ही है, दिस इज 45 डिग्री। ये वेलोसिटी जो है इसकी वो दैट इज स्पीड जो दे रखी है दैट इज v। ठीक है, तो v सेम स्पीड v। ठीक है, तो अभी इसमें टाइम टेकन टू मीट है, मैं उसका सीधा आपको फॉर्मूला अभी बता रहा हूँ। टाइम टेकन टू मीट जब भी आएगा दैट इज जिस पॉइंट पे फाइनली मीट कर रहे हैं, जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है उसको ज्वाइन करके आएगा। रेगुलर फिगर के अंदर होगा हमेशा, दिस इज ओ एन बाय वेलोसिटी अलोंग ओ एन, एक किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, ये टाइम है। तो ओ एन इज बेसिकली हाफ ऑफ डायमीटर। तो अगर साइड जो है जो हमारे पास स्क्वायर है, अगर उसकी साइड गिवन है ए, तो डायगोनल कितना होता है, डायगोनल इज ए रूट 2। ठीक है, और दिस इज ओ एन इज हाफ ऑफ डायगोनल, ओ एन इज हाफ ऑफ डायगोनल, ओ एन इज ए रूट 2 बाय 2, हाफ ऑफ डायगोनल। देयरफॉर टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ए बाय रूट 2 अपॉन, जिस वेलोसिटी का इस पे कंपोनेंट लेंगे तो कॉस आ जाता है v cos 45, तो ये आ जाता है a बाय रूट 2 अपॉन v बाय रूट 2। टाइम टेकन इज a बाय, ठीक है, ये आएगा। तो ऐसे ही हम और क्वेश्चन एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। हर केस में ऐसे ही करना है, फिगर रेगुलर होगी। जैसे भी स्क्वायर दिया है, मैं भी नेक्स्ट में ट्रायंगल दूंगा, तो ट्रायंगल में भी आपको सेंटर से उसको ज्वाइन करना है। बस आपको सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस ध्यान रखना होता है वो कितना है, और जो वेलोसिटी है वो भी सेम होनी चाहिए सबकी, जिससे एक दूसरे की तरफ हेडिट कर रहे हैं। उसका कंपोनेंट लेंगे हम इस लाइन के अलोंग और वो नीचे रख देंगे, तो टाइम आ जाएगा हमारा टाइम टेकन टू मीट। ठीक है, तो आइए अब इसको देखते हैं। ऐसे कितने भी पर्सन के लिए आप कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, if 3 persons are initially at corners of
of an equilateral triangle having side D. ठीक है, situation is same as in question number 7. सेम सिचुएशन का मतलब है कि तीन अगर पर्सन हैं तो तीनों दूसरे की तरफ हेड कर रहे हैं. फाइंड द टाइम टेकन टू मीट. और वेलोसिटी भी मतलब मैग्नीट्यूड उसका v है. जैसे अब आप ये देख सकते हैं. दिस इज 3 पर्सन्स को आप PQR ऐसे ले सकते हैं. तो ये इस तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करेगा, ये इधर और ये इधर. ठीक है, दे विल फाइनली मीट एट दिस पॉइंट. तो ट्रिक तो क्लियर ही है, हमें कैसे इसको करना है. हम ज्वाइन करेंगे सेंटर से एक किसी एक को भी. ये O है सेंटर. तो इसके लिए हम दिस इज PQR O पॉइंट. तो अभी मैं इसको ज्वाइन करता हूँ. ये 30 है. साइड तो आपको बताइए ये. और ये जो वेलोसिटी है अगर ये इस तरफ है तो इसके कंपोनेंट लेंगे. तो टाइम टेकन टू मीट इक्वल टू T. T is equal to OQ upon velocity along OQ. ठीक है जी. देखिए किसी को आता है अगर ये करके दिखाइए एक बार. ठीक है जी. तो अब देखिए इसमें इसको मैं O पॉइंट OQ और ये ड्रॉ करते हैं. दिस इज O, दिस इज Q. इसको ऐसे ले लेते हैं, मिड पॉइंट बनेगा ये A/2 है, ये 30 डिग्रीज है. Therefore cos 30 is based on OQ. This is √3/2. A/2 OQ. OQ की वैल्यू आ जाएगी A/√3. ठीक है, देख लेते हैं लिखता हूं. आइए देखते हैं इसमें क्या आंसर बनता है. अगर इसमें आप टाइम लिखते हैं, दिस इज OQ which is A/√3 and velocity along OQ is V cos 30. √3/2. So time will be A/√3 V√3/2. 2A/3. चेक कर लीजिए इसको. ठीक है ना. ये देखिए जैसे पीछे हमने किया था यही तरीका था उसका. 2A/3V. ट्रिक सेम है. लाइन ज्वाइन करनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, लाइन की लेंथ निकालनी है और वेलोसिटी को लेना उस लाइन के अलोंग. तो आप कर पाएंगे उसको. ठीक है.
ऐसे आप डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और ऐसे में देख लेते हैं हम। In question number 7, if 6 persons are there standing at 6 corners of a regular hexagon, of side D, find time taken to meet. Remember, find time taken to meet if they are headed towards each other. ठीक है, ये तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस टाइप से हम इसको ले लेते हैं। PQRSTU, ठीक है, सेंटर की तरफ। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें, जैसे ये तो चलो जो इसकी साइड थी दैट वाज टेकन एज डी, यानी ए लिख दिया वैसे यहाँ पे, इट वाज टेकन एज डी। आप इसको डी कर लीजिए या ए, जैसे भी करना है, टेक दिस एज ए, ठीक है ना। डिस्टेंस जो दिया होगा उस हिसाब से हम इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये इसमें इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर कि अगर ये साइड ए है, तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो बेसिकली ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बन जाएंगे जिनकी साइड ए है। ठीक है, और ये जो एंगल है दिस इज 60। अभी आप इसको जैसे ही लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन तो क्लियर ही है अभी इसमें। टाइम टेकन टू मीट, t is equal to ot by velocity along ot। so t is equal to ot जो है दैट इज a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने वाला है, अपॉन v cos 60। so time will be a upon में v cos 60 होता है। so this is 2a by v। ठीक है जी, ये आंसर आ जाता है आपके पास, चेक कर लीजिए आप। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर होना चाहिए कैसे हमें, बेसिक क्लियर है। अगर आपको ट्रिक क्लियर है कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। पार्टिकल क्रॉसिंग origin, particle crossing the origin of coordinates at time t is equal to 0 moves in xy plane with constant acceleration a in y direction if equation of motion is y is equal to bx square its velocity component
इन x डायरेक्शन। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। Particle that is crossing the origin of coordinates at time t is equal to 0 moving in xy plane। तो एक्सल प्लेन में मूव करते हुए जब ओरिजिन क्रॉस कर रहा है उस समय बता रहे हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन a जो है दैट इज अलोंग y एक्सिस की डायरेक्शन में है। इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा आपको कितना है, इक्वेशन ऑफ मोशन जो है y इज इक्वल टू bx स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस टाइप से है ये। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज x, दिस इज y। तो ये बेसिकली इस टाइप से है हमारे पास। ठीक है, तो जब ये यहाँ से क्रॉस कर रहा है इस समय, when it is crossing this origin, तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। अगर तो इसकी जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन इस समय ये है y डायरेक्शन विच इज a। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जैसे y अगर हमें दिया हुआ है bx स्क्वायर, डिफरेंशिएट करते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू t, dy by dt टू bx dx by dt। ये हमने लिख लिया vy इज इक्वल टू 2bx vx is velocity along x axis। अब हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। इस समय हमें vx पता करना है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, दिस इज dvy by dt is equal to 2bx dvx by dt प्लस bx और dx by dt। तो ये आ जाता है एक्सेलरेशन इन y इज इक्वल टू 2bx एक्सेलरेशन इन x प्लस vx का स्क्वायर। तो क्योंकि हम ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, विल पुट x0 y0 इन दिस। सो एट ओरिजिन x इज इक्वल टू 0 y0, y तो है नहीं, एंड ay इज रिटन एज स्मॉल a। देयरफॉर इसको पुट करते हैं तो ये आ जाता है a इज इक्वल टू 2b, x की जगह लिखेंगे 0, तो 0 हो गया, प्लस vx स्क्वायर। सो vx की वैल्यू आ जाती है a by 2b अंडर द रूट। यही हमें पता करना था। अब चेक करें, हमें यही वैल्यू पता करनी थी। देख सकते हैं आप, y is equal to bx और से स्टार्ट किया, इसको डिफरेंशिएट किया, dy by dt is equal to 2bx dx by dt। डिफरेंशिएशन dy by dt है vy, 2bx dx by dt है vx। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया, v को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगी, x और vx को डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल लगा। पहले x को लिखा, v को डिफरेंशिएट किया, फिर v को रखा, x को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर इसमें हमने ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डाल दिए 0 0 पे, क्योंकि वहीं पे पूछा हुआ है। तो x0 y0 और a y है गिवन, y डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है ना, ये गिवन था, ये गिवन थी बात, तो वो हमने रख दिया यहाँ पे। सो a इज इक्वल टू 2b और x0 डालेंगे तो vx स्क्वायर आ जाता है, vx की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। If velocity at any point is given as
v vector is equal to k y I cap plus x j cap. Then equation of path is given as x is equal to y square is equal to y square plus constant x by y is equal to constant x y is equal to constant plus constant. ठीक है, और इसको देख लेते हैं एक बार अब कैसे इसको हमें करना है, क्योंकि v वेक्टर ऐसे दिया हुआ है आपको k y I cap, k is constant, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, k is constant, it is given, plus ky plus kx j cap. Therefore vx ये होता है जो I के साथ होता है, ये ky है, और vy वो होता है जो j cap के साथ होता है, वो kx है. So vx को मैं लिख सकता हूँ dx by dt, this is ky. vy को लिख सकते हैं dy by dt equal to kx. इनको करते हैं डिवाइड. डिवाइड करने का मतलब है vx by vy, ky by kx. So I will write vx as dx by dt upon dy by dt, y by x, k cancel, so this is dx upon dy है ना, ऐसा हम डिफरेंशिएशन में करते ही हैं. This is x dx is equal to y dy. चेक कर लेते हैं इसको. इंटीग्रेशन x dx is equal to y dy, x square by 2 is equal to y square by 2 plus constant c. तो 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, x square is equal to y square plus constant. ठीक है, तो वैल्यू आ गई हमारे पास. इस तरह से कर सकते हैं, चेक कर लीजिए. नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन. पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज r vector is equal to 2t square I cap plus 3t j cap plus 4k cap. t is time, seconds. ठीक है, और बाकी जितने भी कोफिशिएंट हैं वो प्रॉपर SI यूनिट्स में है. Therefore a vector t acceleration at t is equal to 1 second is 4 meter per second square along y direction, 3 meter per second square along x direction, 4 meter per second square along x direction, and d 2 meter per second square along z direction. कुछ नहीं करना, r वेक्टर दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करते जाइए इसको. 2t square I cap plus 3t j cap plus 4k cap. तो v की वैल्यू आ जाएगी dr by dt. This is 4t I cap plus 3 j cap plus 0k cap. Acceleration is dv by dt there. This is 4 I cap 0 j cap
0 के cat. So therefore it is in 4 meter per second square along x axis. ठीक है, ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।